क्रिटिकल एप्रिसिएशन क्या है? द फ्ली बाय जॉन डन के द्वारा। Critical appreciation of the flea by John Donne. John Donne, the poem The Flea is a remarkable example of metaphysical poetry का, जिसमें वो विट को कंबाइन कर रहा है इंटेलेक्चुअल रीजनिंग एंड सेंसुअल इमेजरी टू क्रिएट अ यूनिक आर्गुमेंट इन द फेवर ऑफ seduction. The poem is often read as a dramatic monologue in which the speaker addresses his beloved, attempting to persuade her to give into her sexual advances by presenting a flea as a symbol of their already mingled lives. Rich in conceit, irony, and paradoxes, the flea showcases Donne's signature blend of argument and emotion, intellect and passion. कुल मिला के वो फ्ली में क्या करता है, अपनी बिलव्ड को सेड्यूस करने की कोशिश करता है. ड्रामेटिक मोनोलॉग है, वो बहुत सारी इमेजरी और को सेंशुअल इमेजरी, इंटेलेक्चुअल रीजनिंग को यूज़ करता है, विट को कंबाइन करता है, और ये कंसीट, आयरनी और पैराडॉक्सिस में फुल है, रिच है. ठीक है. एट फर्स्ट ग्लैंस द प्रेमिसेस ऑफ द पोएम माइट अपीयर ट्रिवियल. शुरू में वो ह्यूमरस या तुच्छ दिखेगी. द स्पीकर नोटिस अ फ्ली that has bitten both himself his beloved, and he uses this incident to argue that since their blood is already mingled inside the flea, the act of physical union should not be seen as a shameful or a sinful. The flea in this way becomes the central metaphysical conceit of the poem. और इस वजह से flea जो है वो central conceit बन जाता है metaphysical poem इसका. A tiny insect transformed into a symbol of love, union, and the complex interplay of the body and the soul. The poem opens with the speaker pointing to flea and saying, "Mark but this flea, and mark in this, how little that which thou denest me is. It sucked me first, now sucks thee, and in this flea are two bloods mingled be." वो वही अपनी आर्ग्यू पेश करता है उस चीज़ को लेके. Here Donne's wit is apparent, and he draws a comparison between the mingling of the blood in the flea and the sexual union he desires. The argument is crafted with logical precision. If their blood is already mixed, why should the woman resist his proposal? कि अगर उनका blood already mix हो चुका था तो why is woman rejecting his proposal? The triviality of the flea is contrasted with the gravity of the woman's chastity, so creating a sense of irony that permeates the poem. The speaker continues his argument by emphasizing that flea has done what society or religion forbids, united them in a bodily way, and yet no harm has come of it. He says, "The flea is you and I, and this is our marriage bed, and our marriage temple is." The line is powerful metaphysical conceit where the flea becomes both the physical and spiritual union of the lovers, a marriage bed and a temple. Donne's ability to stretch the metaphor without breaking its logical and emotional tension is a hallmark of his poetic skill. कि डन इस वे से स्ट्रेच करता है मेटाफर को कि अपना लॉजिकल और इमोशनल टेंशन को भी वो सही रखता है, मतलब उस चीज़ को भी, और अपना आर्ग्यू भी पेश करते हैं, यानी उस मेन अपनी वो विट के लिए जाना जाता है. The reader is both amused and intellectually engaged by surprising connection the poet draws. कि रीडर भी हैरान है वो कि वो उस चीज़ को किस तरीके से कनेक्ट कर रहा है. The tone of the poem shifts subtly in the second stanza में as the speaker became more persuasive and confident. और सेकंड में वो ज़्यादा उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन चुका है. He suggests that by killing the flea, the women would be committing 3 sins. कि अगर वो उस फ्ली को मार देती है तो वो 3 सिंस को कमिट करेगी. मर्डर ऑफ द फ्ली, पहले तो उस फ्ली को मारेगी. सेकंड सुसाइड, अब क्योंकि उसका खुद का ब्लड है उसमें तो वो खुद को भी मार देगी. और सैक्रिलेज यानी एज द फ्ली रिप्रेजेंट देयर यूनियन, और उसको भी मार देगी, मतलब थर्ड पर्सन को भी मार देगी. उसके बिलव्ड का भी खून है, तीनों का खून मिक्स हो जाएगा. दिस exaggerated logic is a part of Donne's. एक सेकेंड. शी विल बी डूइंग 3 मर्डर्स, वो 3 मर्डर्स करेगी. और दिस एग्जेजरेटेड लॉजिक इज़ पार्ट ऑफ डन्स आयरनिक स्टाइल का ये पार्ट है. स्पीकर क्या कहता है, वेयर इन कुड दिस फ्ली गिल्टी बी एक्सेप्ट इन दैट ड्रॉप विच इट सक्ड फ्रॉम दी. इसकी अब ये उसकी तरफ से दलीलें पेश करे कि इसकी क्या गलती थी, इसने तो सिर्फ वही ब्लड ही सक किया था तुमसे, इसकी बस यही गलती थी, एक्सेप्ट इन दैट ड्रॉप. Here Donne shows how metaphysical poets often use unusual imagery to address complex emotional और philosophical issues. यहाँ ये शो कर रहा है कि कैसे जो डन ने metaphysical poets जो हैं unusual imagery को यूज़ करते हैं अपने इमोशनल और फिलोसफिकल इश्यूज़ को दिखाने के लिए. द टोन रिमेन्स प्लेफुल येट सीरियस. टोन जो है प्लेफुल भी है लेकिन सीरियस भी है, इंटेलेक्चुअल येट सेंसुअस भी है.
However, the woman does kill the flea, and this act forces the speaker to adapt his argument. Instead of conceding defeat, he interrupts the act to his advantage. He says, जबकि जो women है वो कैसे flea को मारती है, ये act force करेगा speaker to adapt his argument. women ने उसको मार दिया, अब वो आपकी डिफीट को उस चीज़ को अपनाने के बजाय वो अपना उसको बिलव्ड को फिर से इंटरप्ट कर देगा और अपना दलील फिर से पेश करेगा. वो क्या कहता है, येट दो ट्राइम्पेस्ट सेज दैट दो फाइंडेस्ट नॉट दे सेल्फ नॉर मी द वीकर नाउ दिस ट्रू देन देयर हाउ फॉल्स फियर्स बी जस्ट सो मच ऑनर व्हेन दो यील्डेस्ट टू मी विल वेस्ट एज द फ्ली दैट टुक लाइफ फ्रॉम देम. वैसे ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें 2 से 3 ही याद करने थे, जो इजी लगे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारी ये सीरीज़ है, तो जो आपको सही लगे वो आप याद कर सकते हैं. द फाइनल स्टेंजा इज़ फुल ऑफ आयरनिक रिवर्सल. ये क्या कह रहे हैं, ये फुल ऑफ आयरनिक रिवर्सल है. द विमेन एक्ट ऑफ किलिंग द फ्ली वॉज मेंट टू रिजेक्ट द स्पीकर आर्ग्यूमेंट. और उन्होंने क्या किया, स्पीकर के आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट करने की कोशिश की, बट ही यूज इट टू रीइंफोर्स हिज पॉइंट. लेकिन उसने इस पॉइंट को रीइंफोर्स करने के लिए इस चीज़ का फ्ली का यूज़ किया, दैट नथिंग सिग्निफिकेंट इज लॉस्ट इन फिजिकल यूनियन, कि फिजिकल यूनियन में कुछ ज़्यादा लॉस नहीं होता. जस्ट एज नथिंग वॉज लॉस्ट व्हेन फ्ली वॉज किल्ड. जैसे कि फ्ली के मरने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं होता, वैसे ही सेम फिजिकल यूनियन से होता है. द यूज़ ऑफ पैराडॉक्सिस एंड आयरनीज here only reveals that the speaker's cleverness and the fluidity of Donne's poetic thought के बारे में हमें पता लगता है. क्रिटिकल कमेंट फिर से एलन गार्डनर का क्या है, अ प्रोमिनेंट क्रिटिक है मेटाफिजिकल पोइट्री के, नोट्स दैट द डन्स पोएम द आर्गुमेंट इज द एक्सपीरियंस. द फ्ली एग्जाम्प्लीफाइज दिस बाय turning a logical syllogism into a dramatic seduction. The intellectual play is not a separate from emotional content से अलग नहीं है, rather it is a vehicle through which desire को express किया जाता है. The poem does not merely aim to persuade the women but also to engage the reader in his experience of wit and persuasion. Donne's power lie in his ability to make even the most trivial subject like a flea. Donne की पावर क्या है कि एक फ्ली, सबसे तुच्छ ट्रिवियल चीज़ को भी वो क्या कर सकता है, फिलोसफिकल और इरोटिक स्पेकुलेशन का वो बेसिस बना सकता है. सेकेंड है क्लिंथ ब्रुक्स. इन हिज एनालिसिस ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री प्रेजेस डन फॉर हिज यूज़ ऑफ पैराडॉक्सिस टू रिवेल डीपर थॉट्स को दिखाने के लिए वो यूज़ करता है. इन द फ्ली द पैराडॉक्स इज दैट इनसिग्निफिकेंट इंसेक्ट है बिकम अ सिंबल ऑफ डीप इमोशनल और फिजिकल यूनियन का वो सिंबल बन जाता है. ब्रुक आर्ग्यूज दैट पैराडॉक्सिस इज द लैंग्वेज अप्रोप्रिएट एंड इनएविटेबल टू पोइट्री, कि ये पैराडॉक्सिस जो है वो लैंग्वेज अप्रोप्रिएट है एंड inevitable to poetry. And Donne's paradoxical conceit is the poem underscores the irrationality of social and moral constraint against physical love. The paradoxis sharpens the tension between the body and soul, lust and virtue, convention and passion. ये सब यही बता रखा है कि उसने अपना कैसे अपनी विट से इमेजरी यूज़ करी और ये सब यूज़ किया. The Flea, अब आता है हमारे पास कंक्लूजन. द फ्ली इज़ अ मास्टरफुल एग्जाम्पल ऑफ जॉन डन्स एबिलिटी टू ब्लेंड विट, आर्ग्यूमेंट, इमोशन इनटू अ सीमलेस पोएटिक एक्सपीरियंस. द पोएम इज़ प्लेफुल येट सीरियस भी है, absurd है लेकिन रिच भी है, प्रोफाउंड भी है. थ्रू इट्स एक्सटेंडेड कंसीट, आयरनिक टोन एंड परसुएसिव स्ट्रक्चर है. इट रिवेल्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन डिज़ायर एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज टू चैलेंज सोशल नॉर्म्स को कैसे चैलेंज कर रहा है. Donne's skill is manipulating form and content not only exemplify the metaphysical tradition but also keeps the poem relevant भी रखता है, engage करता है modern readers को. The flea is a small and seemingly insignificant creature है लेकिन एक powerful symbol बन जाता है union और desire का. reflect क्या करेगा, poet's ability that the body and the soul are not enemies नहीं है but intertwined elements है human experiences के. एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट. क्रिटिकल एप्रिसिएशन. जॉन डन फ्ली एक रिमार्केबल एग्जाम्पल है मेटाफिजिकल पोइट्री का. इंटेलेक्चुअल रीजनिंग, सेंसरी इमेजरी और क्रिएट एक यूनिक आर्ग्यूमेंट करेगा इन फेवर ऑफ सिडक्शन के फेवर में. पोएम स्पीकर से होती है. मार्क बट दिस फ्ली एंड मार्क इन दिस हाउ लिटिल दे दो, ये 2 लाइन ऊपर भी छोड़ दो. सक मी फर्स्ट नाउ सक्स दी एंड दिस फ्ली आवर 2 ब्लड्स मिंगल्ड बी. फिर आती है द फ्ली इज़ यू एंड आई, दिस इज़ आवर मैरिज बेड एंड मैरिज टेम्पल इज़, ये बता रहा है. बहुत पावरफुल मेटाफिजिकल कंसीट है जहाँ पे फ्ली जो है स्पिरिचुअल यूनियन और फिजिकल यूनियन दोनों का सिंबल बन रहा है. टोन जो है वो
सर्टनली इन सेकंड स्टेंजा में चेंज होगी, जहाँ वो ज़्यादा परसुएसिव और कॉन्फिडेंट हो चुका है। और एक ये से पूछ रहा है, वेयर इन कुड दिस फ्ली गिल्टी बी एक्सेप्ट इन दैट ड्रॉप्स विच इट सक्ड फ्रॉम दी। तो ये है बस। तो क्रिटिकल कमेंट्स हैं हमारे, उसमें वो क्या बोल रहा है, एक में तो ये बोल रहा है द आर्गूमेंट इज़ द एक्सपीरियंस, और इसमें ये क्या बोल रहा है, पैराडॉक्स इज़ द लैंग्वेज अप्रोप्रिएट एंड इनएविटेबल टू पोइट्री। अगर आपको ये नहीं पसंद क्रिटिकल कमेंट्स, तो हम कोई और क्रिटिकल कमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं, जो हमने पहले पढ़े और जो आगे पढ़े हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। ये कंक्लूजन है, तो ये हमारा ये कंप्लीट हो। थैंक यू। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट अप्रिशिएशन करेंगे।